Good morning, custodians. Today we are discussing our chapter first. That is the chapter first, chemical reaction and equation of the subject chemistry from class 10. And let's discuss this chapter from the NCERT. Chapter 1 is here, chemical reaction and equation. Consider the following situation of daily life and think what happened when. Right. We have given that you have to consider the following situations of daily life and think what happens. कि क्या होगा, आपको क्या कि कुछ सिचुएशंस के बारे में अंडरस्टैंडिंग करना, सोचना है, और क्या होगा कि जब when milk is left at room temperature during summer. So what is the room temperature during summer? During the summer, the room temperature is approx 30 degrees Celsius to 45 degrees Celsius. It's a average, but in the science, in the language of the chemistry, we may take the room temperature as the 25 degrees Celsius also, right? So when the milk is exposed, when milk is left at room temperature during the summer, its taste gets changed into the sour taste. And why this happen? This is happened due to the oxidation of milk. When the temperature increases of the milk, its oxidation starts, and due to this the microorganisms already present in the milk starts to increase their production, and when the production of microorganism increases, they starts the oxidation reactions very fast and changes into the sour taste, and this sour taste is due to the lactic acid. The total conclusion about this statement is that milk generally contains lactose. Lactose is a type of sugar, or it's a type of carbohydrates. When it's left in the summer at room temperature, right, its oxidation start and it's convert into the lactic acid. And you must aware about the nature of acid. The acids are sour in taste. What it means? It means that there is a chemical reaction proceed. यहाँ पे एक chemical reaction हुई है और उस chemical reaction का नाम क्या है? Oxidation. Okay. उसके बाद the second points we have given that an iron tawa pan nail is left exposed to humid atmosphere. Right? When any iron article is left exposed to the humid atmosphere. What it means? Humid atmosphere means it contains moisture, and moisture contains means water, and atmosphere means it contains oxygen or air. So when the iron articles get reacted with the water in the presence of air or oxygen, it forms a layer of rust on its surface. Suppose this is the iron articles. When it react with the water H2O in the presence of oxygen, a brown color layer of iron oxides gets covered on the surface of the iron article, and the formula of rust is Fa2O3.X molecules of water. This is the formula of rust, and the layer of this rust gets attached gets covered on the surface of the iron article when the iron is left exposed to the humid atmosphere. I think these two statements are clear now. What happens when grapes get fermented? कि क्या होगा जब जो ग्रेप्स है, अंगूर है, उनका क्या कि फर्मेंटेशन प्रोसेस किया जाता है. देखो जब ग्रेप्स उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस किया जाता है तो इसमें भी एक रिएक्शन कन्वर्ट होती है, उसमें क्या होता है? फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है. और फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जनरली क्या होता है? डिकम्पोजिशन होता है. तो होता है जनरली डिकम्पोजिशन किसकी वजह से? जो ग्रेप्स है उसमें जो एंजाइम्स है, अब ग्रेप्स में भी क्या होगा? देखो कार्बोहाइड्रेट्स होगा, एक शुगर प्रेजेंट होगा या फिर एक एसिड्स भी प्रेजेंट होगा, तो उसका क्या है कि उसका डिकम्पोजिशन करना, ग्रेप्स का डिकम्पोज करना, वही आपके पास क्या है? फर्मेंटेशन. तो वहां पे भी क्या है? केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करती है. नाउ अभी क्या है कि देखो जो थर्ड ऑप्शन है उसमें क्या है कि जो फूड है इज कुक्ड, राइट,
In the option third, we have given that food is cooked. Now when the food gets cooked, it converts into the different form. Like your food may contain fats, proteins, vitamins, oils, and different many things and many spices. ठीक है, when it get cooked. अब देखो आपका जो फूड है उसमें फैट्स है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ऑयल्स, बहुत कुछ हो सकता है। तो जब उसको कुकिंग किया जाता है यानी उसको हीट किया जाता है तो वो भी डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपका क्या है कि ऑयल है, अब वो अनसेचुरेटेड फॉर्म में है तो वो सेचुरेटेड फॉर्म में जा सकता है। ठीक है, यानी अगर किसी कंपाउंड्स में क्या है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हो सकता है वो सिंगल बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ये सब में क्या है केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करिए, यानी कि आपका जो मेन है मोटिव है यहाँ पे कहने का वो ये है कि जब भी कोई क्या है कि एक इनिशियल कंपाउंड्स है उसमें क्या है कि कोई चेंजेस किया जाता है, राइट। जब भी किसी एक इनिशियल कंपाउंड्स में कोई चेंजेस किया जाता है तो वो आपका एक केमिकल रिएक्शंस बन जाता है, क्योंकि एक नया प्रोडक्ट वहां पे बन जाता है। उसके बाद क्या है कि फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। When the food is get digested in our body, there is a oxidation reaction take place. वहां भी क्या होगा कि oxidation reaction होगी। And we respire, हम क्या रेस्पायर करते हैं यानी सांस लेते हैं, तो हम जो रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें भी हमें क्या नीड होता है, हमें ऑक्सीजन की नीड होती है। ठीक है, तो उसके लिए भी हमें क्या कि ऑक्सीजन की नीड होती है, तो वहां पे भी केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड करती है। ठीक है, अब क्या कि जो मेन कंक्लूजन है, मेन कंक्लूजन आपका ये आया है कि जब भी कोई क्या है कि एक इनिशियल कंपाउंड्स है, राइट, कोई भी आप इनिशियल सब्सटेंस लेके चलो या कोई इनिशियल कंपाउंड्स लेके चलो, जब आप उसमें कोई भी आप उसमें क्या कि केमिकल चेंज अप्लाई करते हो, व्हेन यू अप्लाई एनी केमिकल चेंज टू योर इनिशियल कंपाउंड्स, एनी केमिकल चेंज इज व्हाट, केमिकल चेंज आर जनरली इरिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है। तो अब इनिशियल कंपाउंड है, आपने उसमें कोई केमिकल चेंज अप्लाई किया, तो अब जो इनिशियल कंपाउंड है, जो फाइनल कंपाउंड्स है, उसमें क्या कि कुछ ना कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, यानी कि जो इनिशियल कंपाउंड है अब वो फाइनल कंपाउंड जैसा बिल्कुल नहीं होगा। इन दोनों जो कंपाउंड्स में ये जो दो कंपाउंड्स है एक दूसरे से क्या रहेंगे, डिफरेंट होंगे। अगर ये एक दूसरे से क्या है डिफरेंट है तो वहां पे क्या है कि कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करती है। अगर ये क्या कि सेम कंपाउंड है यानी इनिशियल भी सेम है, आपने कुछ चेंजेस किया, फाइनल भी सेम है, और फिर भी यह है कि दोनों सेम बन जाते हैं, तो वो उसमें क्या कि कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड नहीं की है। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो जब भी आप कोई इनिशियल कंपाउंड है फाइनल कंपाउंड में किसी दूसरे कंपाउंड में चेंज हो जाता है ड्यू टू एनी केमिकल चेंज, दैट इज नोन एज योर केमिकल रिएक्शन, राइट। In all of the above situation, look, in all of the above situations, the nature and identity of the initial substance have somewhat changed. अभी तक हमने देखा कि जितने भी हमने situations रीड आउट की है, in all of the above situation, जो नेचर है यानी जो पहचान है, जो नेचर है पहचान है, या फिर उसका जो नेचर है जिस फॉर्म में वो प्रेजेंट है, उसका जो इनिशियल सब्सटेंस है वो कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ है। जैसे मिल्क है, मिल्क का भी क्या हुआ, टेस्ट चेंज हुआ यहाँ पे। उसके बाद आयरन तवा था, आयरन का जो आर्टिकल था उस पर क्या हुआ, रस्ट लगा, तो उसका भी क्या कि एक लेयर है वो फॉर्म हो गई, तो वो भी उसका भी क्या कि इनिशियल जो कंडीशन है वो चेंज हो गई है, समवट चेंज हुई है। ग्रेप्स है, ग्रेप्स में भी चेंजेस आए हैं, ठीक है। जो फूड है, फूड कुकड हुआ है, उसमें भी चेंजेस आए हैं। तो फूड गेट डाइजेस्टेड, जो फूड है हमने जो सिंपल फॉर्म में या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो फूड है वो इनटेक किया, वो क्या कि हमारी बॉडी में जाने के बाद डाइजेस्ट हो जाता है सिंपल सब्सटेंस में, तो वहां पे भी एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हुई है। वी रिस्पायर, हम अगर रेस्पिरेट करते हैं, हम सांस लेते हैं, तो वहां पे भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड की है। तो वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में हम ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में। एक बार दोबारा से हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, व्हाट इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज आर जनरली मे बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल बोथ। Generally, in 80% chances they are reversible, in 20% chances they are irreversible. But the initial and final compounds remain same always in the physical and chemical. In the physical changes, the initial compound and the final compound remains the same. ठीक है, like cutting of trees. Cutting of tree is a physical change. आपने क्या है कि कोई ट्री है, आपने उसको कट किया है, तो जो ट्री पहले ट्री था अब बाद में वही ट्री आपके पास होगा, तो इट्स ए फिजिकल चेंज। तो केमिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज वो है जब आप कोई इनिशियल कंपाउंड आपने लिया है
और उसके बाद उसमें आपने कुछ चेंजेस किए और वो फाइनल कंपाउंड आपका जो बना वो डिफरेंट आएगा। जैसे क्या कि आपने बर्निंग किया है, अभी क्या किया आपने, बर्निंग किया है वुड का है, बर्निंग ऑफ वुड या बर्निंग ऑफ पेपर। अब आपने पेपर है उसको बर्न किया है, पेपर को बर्न करने के बाद आपको क्या मिलेगा, सिर्फ ऐश मिल जाती है, ब्लैक ऐश मिल जाती है। तो क्या अब हम उसको दोबारा से क्या कि दोबारा पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो क्या है केमिकल चेंजेस है। ठीक है, तो वेन एवर ए केमिकल चेंज अकर्स, जब भी कोई केमिकल चेंज अकर्स करता है, वी कैन से दैट ए केमिकल रिएक्शन इज टेकन प्लेस। तो हमारे पास क्या है कि एक इंपोर्टेंट डेफिनेशन क्या है कि जहां भी आपको केमिकल रिएक्शंस देखने को मिले या कोई केमिकल चेंज आपको देखने को मिले, आप कह सकते हो कि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हुई है, राइट। We can say that a chemical reaction has taken place. You may perhaps be wondering as to what is actually meant by chemical reaction. How do we came to know about that a chemical reaction has taken place? कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई chemical reaction वहां पे proceed की है? The main question is that how do we came to know? हमें कैसे पता चलेगा कि कोई chemical reaction हुई है? Let us perform some activity to find the answer to this question. ठीक है, अब क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा? How do we know? How do we know that a chemical reaction has taken place? A chemical reaction has taken place. तो हमें कैसे पता चलेगा chemical reaction हुई है? तो उसके लिए हम क्या कि कुछ एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.2 और एक्टिविटी 1.3 करेंगे। ठीक है, जिसके हेल्प से हमें इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो करने में हेल्प मिलेगी। सो लेट्स डू आवर एक्टिविटी 1.1. In your activity 1.1, that this activity needs the teacher assistance. It would be better if the students wear eye protection. Clean a magnesium ribbon about 2 cm long by rubbing it with the sandpaper. Hold it with a pair of tongs. देखो आपको क्या करना है, आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेना है। बाय चांस ये आपकी मैग्नीशियम रिबन है, राइट। मैग्नीशियम का एक मेटल है, तो मैग्नीशियम की रिबन की आपने एक पट्टी ली, एक रिबन ली, मैग्नीशियम रिबन, ये मैग्नीशियम रिबन है। आपने इसको क्या है क्लीन करना है। पहले क्लीन किसकी हेल्प से करना है, विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर आपने इसको क्लीन किया, ठीक है, यानी जो इसकी जो लेयर है, आउटर लेयर है, आपने उसको क्लीन किया विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर, मैग्नीशियम रिबन को। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, ये है आपके पास टोंग है, टोंग की हेल्प से आपने इसको मैग्नीशियम रिबन को होल्ड किया। एंड देन यूजिंग स्प्रिट लैम्प का आपने यूज करके इसको बर्न किया। और बर्न एंड कलेक्ट द एश शो फॉर्म इन ए वॉच ग्लास, और जो वॉच ग्लास है उसमें आपने जो इसका वेस्ट है वो जो है वो कलेक्ट किया। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आई, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flames and changes into the white powder. क्या है कि देखो जब भी मैग्नीशियम रिबन, ये मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया जाता है तो इसमें से क्या है कि एक ना फ्लेम्स निकलते हैं, और वो फ्लेम्स कैसे होते हैं, डेजलिंग व्हाइट। यहाँ से क्या है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम्स आती है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम्स। अब डेजलिंग व्हाइट फ्लेम्स एंड चेंज इनटू द व्हाइट पाउडर, और यही डेजलिंग व्हाइट फ्लेम्स है क्या है कि जो मैग्नीशियम रिबन है जब वो बर्न कर जाएगा तो वो मेटल है एक व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका व्हाइट पाउडर है, ठीक है। और वो व्हाइट पाउडर किस चीज का होगा, वो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। दिस पाउडर इज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। सो अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ क्या, जनरली देखो आपके पास क्या था, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम रिबन है, जब आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बर्निंग किया है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने उसको बर्निंग किया, तो वहां पे क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो यहाँ जो क्या बना वो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बनेगा। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, MgO, वो क्या कि हम बाद में देखते हैं उस चीज को। मेन हमारा क्या है कि यहाँ पे जो रिएक्शंस हुई है वो किसकी हुई है कि जो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर हमने क्या किया जब उसको बर्निंग किया, क्योंकि बर्निंग करने के लिए ऑक्सीजन हमें नीड होती है। विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट बर्न एनी मैटर। सो व्हेन अ मैग्नीशियम is burned in the presence of oxygen, it's get converted into the magnesium oxide and a reaction take place between the magnesium and oxygen. It forms MgO, magnesium oxide. That is the reaction.
तो अभी आपको क्या पता चला यहाँ से, देखो कि जब भी आपने एक मैग्नीशियम रिबन, यानी आपने मैग्नीशियम लिया, रिबन लिया, अब आपने क्या किया, उसको सॉलिड फॉर्म में लिया। देखो पहले आपके पास जो कंपाउंड सी था सिर्फ मैग्नीशियम था। अब मैग्नीशियम को जब आपने क्या की कोई केमिकल चेंजेस, आपने बर्निंग की, आपने क्या की कोई केमिकल चेंज अप्लाई करवाया, राइट, आपने बर्निंग करने से क्या की कोई केमिकल चेंज अप्लाई करवाया है। तो जैसे ही आपने कोई केमिकल चेंज अप्लाई कराया तो मैग्नीशियम जो उसका इनिशियल कंपाउंड मैग्नीशियम था वो फाइनल कंपाउंड किस में कन्वर्ट हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो इनिशियल कंपाउंड मैग्नीशियम कन्वर्ट इनटू द मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड दोनों ही क्या है, डिफरेंट कंपाउंड्स है। कैसे कंपाउंड्स है, डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम है उस कैसे फॉर्म में था, एक जो रिबन की फॉर्म में था और उसका कलर कुछ और था, यानी मे बी ग्रे कलर हो सकता है, ठीक है, उसमें लस्टर हो सकता है, मेटालिक लस्टर हो सकता है। लेकिन जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो कैसा मिला है आपको, व्हाइट कलर का मिला है और ये व्हाइट पाउडर की फॉर्म में मिला है। तो जो फर्स्ट कंपाउंड है मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड दोनों में चेंजेस है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड की है। ये थी आपकी एक्टिविटी 1.1। उसके बाद आते हैं हम अपनी एक्टिविटी 1.2 में। आपने क्या करना है, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। आपने लेड नाइट्रेट लिया, दैट इज PbNO3 का ट्वाइस। लेड नाइट्रेट लिया आपने इन ए टेस्ट ट्यूब एंड ऐड पोटेशियम आयोडाइड। आपने देखो एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में आपने ये लिया लेड नाइट्रेट और इसी टेस्ट ट्यूब में आपने ऐड कर दिया है पोटेशियम आयोडाइड, Ki आपने ऐड किया पोटेशियम आयोडाइड। जब आपने इसमें पोटेशियम आयोडाइड ऐड किया, देखो इसमें क्या क्या आपको ये जो बीकर दिख रहा है, इस बीकर में ऑलरेडी क्या है, PbNO3 है, यहाँ पे क्या है PbNO3। और जैसे ही हमने इसमें क्या है, ये जो एक नेक्स्ट बीकर से हमने इसमें क्या डाला है, Ki पोटेशियम आयोडाइड हमने ऐड किया, तो इसमें जो कलर कैसा हुआ, जो येलो कलर है वो बनना स्टार्ट हुआ, येलो कलर की फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो गई। इट मींस क्या हुआ, जो येलो कलर बना वो किसकी वजह से, PbI2 की वजह से बना है, लेड और आयोडाइड बना है वो। देखो ये रिएक्शन है, ये येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड PbI2 इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने ऑब्जर्व क्या किया, हमने ऑब्जर्व किया ये येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन occurs here and the chemical reaction is that lead nitrate आपके पास ये था, ये आपके पास lead nitrate है, ये आपके पास पोटेशियम आयोडाइड है। जब आपने इन दोनों को रिएक्शन करवाया है तो ये आपके पास येलो पीपीटी बने हैं लेड आयोडाइड के, ठीक है। इस कलर की, इस कंपाउंड की वजह से आपका कलर कैसा आया है, येलो कलर का आया है। और KNO3 जो लिक्विड बचा है वो आपका KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बच गया है, ठीक है। तो अभी हमें क्या ऑब्जर्व मिला, हमें ऑब्जर्वेशन ये मिली है कि जो फर्स्ट हमारा जो देखो जो कंपाउंड था, देखो ये भी जो ये कलर था, ये कंपाउंड था पहले वो लेड नाइट्रेट था, वो कैसा कलर था, कलरलेस था, ठीक है, उसका कोई भी कलर नहीं था, बिल्कुल जैसे वाटर कलर होता तो वैसे ही था। ऐसे ही लेड आयोडाइड का जो सॉल्यूशन था वो भी कलरलेस ही था, ठीक है। लेकिन जब हम दोनों ने उसको मिक्स किया, जब हम इन दोनों कंपाउंड्स को मिक्स किया, इन दोनों कंपाउंड्स को जब हमने मिक्स किया है, तो जो इनिशियल कंपाउंड मेरा जो लेड नाइट्रेट था इनिशियल कंपाउंड वो किस में कन्वर्ट हुआ, लेड आयोडाइड में, यानी कि येलो कलर में। तो हमें क्या है कि एक कलर में चेंजेस आया है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है, एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस की है। उसके बाद हम आते हैं एक्टिविटी 1.3 पे। टेक ए फ्यू जिंक ग्रेनुअल्स इन ए कैनोनिकल फ्लास्क और ए टेस्ट ट्यूब। हमने क्या है कि देखो एक हमने क्या है कि कोनिकल फ्लास्क लिया है, कैनोनिकल फ्लास्क में हमने जिंक ग्रेनुअल्स डाला है। उसके बाद एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप जिंक ले सकते हो, जिंक में आपने डाला है क्या, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, या तो आप ले सकते हो H2SO4 या फिर आप ले सकते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl भी आप ले सकते हो, राइट। तो जब आपने इसमें रिएक्शन प्रोसीड करवाया है, याद रखना जब भी कोई मेटल, देखो जिंक क्या है, मेटल है, जब भी कोई मेटल है H2SO4 यानी कि एसिड के साथ रिएक्शन करता है, जब भी कोई मेटल आपका H2SO4 यानी कि एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो ऑलवेज हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। हाइड्रोजन गैस तो ऑलवेज रिलीज करेगा ही करेगा। उसके बाद जो भी बच जाता है आपका वो कंपाउंड बनेगा। जैसे ZnCl बचा है तो ZnCl2 एक सोल्ट की फॉर्मेशन हुई, ऐसे यहाँ पे ZnSO4 एक सोल्ट की फॉर्मेशन हुई, तो जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड, राइट, यहाँ पे ये सोल्ट बना। तो व्हेन मेटल रिएक्ट विद द एसिड दे रिलीज हाइड्रोजन गैस एंड सोल्ट। तो अब हमें इस एक्टिविटी से क्या पता चला कि यहाँ पे जो गैस है उसका इवोल्यूशन हुआ है, गैस बाहर निकली है, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज, हमने जो अभी 3 एक्टिविटीज की है, we can say that any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has taken place or not।
ठीक है, जो हमारा मेन क्वेश्चन था अभी क्या था कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड की है। तो हमें कैसे पता चला केमिकल रिएक्शन कि वेदर, या तो उसमें क्या है कि चेंज इन स्टेट, जो उसकी स्टेट है, इनिशियल स्टेट है, उसमें चेंजेस आ सकते हैं, या फिर उसमें क्या है कि चेंज इन कलर, कलर में चेंज आ सकता है, या फिर इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, गैस का इवोल्यूशन है वो हो सकता है, या फिर चेंज इन टेम्परेचर, जो आपका इनिशियल कंपाउंड कुछ और था और जो फाइनल कंपाउंड है उसमें जो टेम्परेचर है उसमें चेंज आ गया। जैसे ये टेम्परेचर था, अभी आपने क्या कि बाई चांस बीकर लिया, बीकर में आपने क्या कि कोई मेटेरियल लिया, कंपाउंड ए लिया, अब ए कंपाउंड है, इसका टेम्परेचर आपने मेजर किया कि वो 10 डिग्री सेल्सियस है। जब आपने इसमें बी कंपाउंड कोई ऐड किया है, व्हेन यू एडेड द बी कंपाउंड टू द कंपाउंड ए एंड इट्स टेम्परेचर गेट्स हाई, उसका जो टेम्परेचर वो हाई हुआ, यानी कि वो चेंजेस हुआ ऐड करने के बाद 15 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि जो बीकर है वो समवट हॉट हो सकता है। ठीक है, तो टेम्परेचर जैसे ही चेंजेस हुआ है तो उससे भी हम बता सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड की है, चेंज इन टेम्परेचर हुआ है। एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us. We will study about the various type of chemical reaction in their symbolic representation in this chapter. तो क्या है कि जब भी हम ऑब्जर्व करते हैं कोई भी चेंजेस अराउंड अस, हमारे चारों तरफ कोई भी चेंजेस जो हो रहे हैं, वी कैन सी दैट देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो वहां पे बहुत ज्यादा विभिन्नताओं में केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। वी विल स्टडी, हम इन्हीं चीजों के बारे में, इन्हीं रिएक्शंस के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में और उनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो कंक्लूजन हमारा क्या आया है, कंक्लूजन ये है कि एक्टिविटी 1.1 में हमें शो किया दैट चेंज इन द इनिशियल स्टेट ऑफ द कंपाउंड, जो कंपाउंड उसका जो इनिशियल स्टेट है वो चेंज हुआ है, जो मैग्नीशियम था वो किस में कन्वर्ट हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, right? That is, a chemical reaction has taken place. It means a chemical reaction has taken place. In the activity 1.2 shows that change in the color of initial compound, जो आपका initial compounds था उसमें जो color है उसमें changes आया, show that a chemical reaction has taken place. उसके बाद activity 1.3 shows that evolution of gas, एक gas है उसका evolution हुआ, किसका evolution हुआ था यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस का evolution हुआ था during the process, shows us that a chemical reaction has taken place. So this is the conclusion about all the activity 1.1, 1.2 and 1.3. Now a question comes, why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? हमें मैग्नीशियम रिबन है, जब हमने उसको बर्न किया था, देखो जब हमने मैग्नीशियम रिबन है, ये हमारा एक्टिविटी था, हमें यहाँ पे बोला था क्लीन करो, क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर अलोंग बाय रबिंग इट विद द सैंड पेपर। आपने उसको सैंड पेपर की हेल्प से रब किया था, क्लीन किया था, तो क्यों किया था, वो वही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो याद रखना, every metal, generally every metal like a magnesium is also a metal, every metal when just placed in the atmosphere, अब मैग्नीशियम रिबन है, अब क्या कि आपको लेबोरेटरी में है, लेबोरेटरी में वो रखा हुआ है मैग्नीशियम, तो क्या कि उसके पास एटमोस्फेयर भी है, एटमोस्फेयर यानी एयर भी उसके साथ रिएक्ट करेगी। अब एयर जब उसके साथ रिएक्ट कर जाती है तो वो ऑलरेडी एक ऑक्साइड की लेयर लगा लेती है, ठीक है। व्हेन द मैग्नीशियम react with the oxygen, it forms a layer of magnesium oxide, right? Suppose you have this magnesium metal, आपके पास ये मैग्नीशियम मेटल है और जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या कि एक जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसकी लेयर ऐसे लग जाती है, ये आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर मैंने लगा दी, राइट? ये जो लेयर है वो किसकी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अब जब आपने क्या कि आपने इसको बिना रब किए, यानी आपने यही मैग्नीशियम लिया, आपने इसको बिना रब किए, आपने इसको बर्निंग करने की कोशिश किया, आपने इसको बर्न करने के लिए ट्राई किया, तो जब ऑक्सीजन इसकी प्रेजेंस में आएगा, यानी जब आप इसको बर्निंग करोगे, जब आप इसको क्या बर्निंग करोगे, जब आप इसको बर्निंग करोगे तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो लेयर इसको बर्निंग करने से हिंडर करेगी, बर्निंग करने से प्रोटेक्ट करेगी, यानी उसको हिंडर करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। तो जब उसको बर्निंग करने से हिंडर करेगी तो क्या कि वो मैग्नीशियम अच्छे से बर्निंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, उसको पहले जो ये लेयर है, यानी इसको सैंड पेपर की हेल्प से हम इसको रब करते हैं, जिसकी वजह से जो हमें सिर्फ प्योर मैग्नीशियम मिल जाता है। अब प्योर मैग्नीशियम है उसको हम क्या कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दोबारा से बर्न करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही, और फिर हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर मिलेगा, राइट। तो आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर है, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन द एयर? सो द आंसर इज सिंपल, we should have to clean the magnesium ribbon before burning in the air to remove the
to remove the layer of magnesium oxide from it. To remove the layer of magnesium oxide from this, because the layer of magnesium oxide can hinder the burning. The layer of magnesium oxide can hinder the burning of magnesium. That is why we should need to clean it first and then burn to get the pure white powder of magnesium oxide. This is about the concept first and the activity 1.1, 1.2 and 1.3. This is a brief introduction about the chemical reactions and your activities. So in the next video we will discuss in more detail about the balancing and chemical equation. Balancing and chemical equation. We are balancing a chemical equation. In the next video we will discuss about this. Till then, thank you. Have a nice day.